कर देती हूँ स्टूडेंट्स। वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आपको ये आ जाए, पहले तो अपनी वीडियोज ऑन करो। ये जतिन, माधव, ये मुझे दिख ही नहीं रहे बच्चे, किधर गए ये बच्चे? एंड वेरोनिका, वेरोनिका इज सेलिब्रेटिंग बर्थडे। डीपी लगाई हुई है, वेरी गुड। बच्चे आप मुझे खुद दिखने चाहिए ना, आप मुझे दिख नहीं रहे, वेरी बैड। हाँ, हरगुन दिख रहा है बस एक। बाकी स्टूडेंट्स ऑन योर वीडियो। हरगुन आप भी ऑन करो, हरगुन ने डीपी लगाई हुई है। ऑन योर वीडियो स्टूडेंट्स, प्लीज ऑन योर वीडियो। चलो, वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। रीजन बताना है हमने कि हम अर्थ के सेंटर में क्यों नहीं जा सकते। तो आपने बताना है देयर इज लॉट ऑफ heat in the center of the earth. There is a high temperature. High temperature होता है, lot of heat and pressure is there. There is no oxygen, so we can't go to the center of the earth. Now is it clear? There is a high, very good, समर्थ एंड सक्षम, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दोनों अपनी कैमरा ऑन करके बैठे हैं, वेरी गुड। देखो अब सब आ गए ना, तो गुड, वेरी गुड। विरोनिका आप भी आ जाओ, हैप्पी बर्थडे मत सेलिब्रेट करी जाओ। Now listen, we cannot go to the center of the earth. Now is it clear? There is a high temperature, there is lot of heat and pressure, there is no oxygen, everything is in molten form, हर चीज molten state में है, so that's why we can't go to the center of the earth. ऑक्सीजन नहीं है, मोल्टन स्टेट में सब कुछ है, तो इतना हाई टेम्परेचर है। कोई भी पॉइंट्स आप 2-3 लर्न कर लो। इज इट क्लियर? देयर इज हाई टेम्परेचर, एवरीथिंग इज इन मोल्टन फॉर्म and there is no oxygen, so that's why we can't go to the center of the earth. हम नहीं जा सकते, ठीक है। Sedimentary rocks are formed from sediments. अगर ये पूछा जाए तो आपने कहना है igneous rocks. When igneous rocks broken into small pieces, igneous rocks जो हैं वो टूट जाती हैं into small pieces, and from this sediments are formed. Sediments बन जाते हैं। These sediments, ये जो sediments होते हैं ना, are carried by wind and water. These sediments are carried by wind and water to the other place. वहां पे कौन सा गाड़ियां होती हैं, कोई वहां पे ट्रेन आ गई या ट्रक आ गए, इनको उठा के ले जाओ? नो, these sediments are carried by wind and water to the other place, and where they get collected, जहां पे ये इकट्ठे हो जाते हैं, लेयर्स आर फॉर्म्ड, लेयर्स बन जाती हैं, एंड फ्रॉम दीज लेयर्स सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड। नो यू कैन राइट दिस ना। आप पहले भी ये टॉपिक कर चुके हो, मैं तो वैसे ही रिपीट कर रही हूँ कि सेडिमेंटरी रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। यस, सेडिमेंट से ही बनती हैं। कौन सी रॉक्स टूट जाती हैं? इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स आर ब्रोकन इनटू sediments. These sediments are carried by wind and water to other place. They get collected, वहां पे वो इकट्ठे होते हैं, layers are formed, and from these layers sedimentary rocks are formed. Is it clear? ये आप पहले भी कर चुके हो टॉपिक, हम तो सिर्फ रिपीट कर रहे हैं इनको। Limestone is changed into marble. Give reason. Temperature and heat is more in the interior of the earth. Temperature and heat is more in the interior of the earth's surface. So due to this heat and pressure, limestone changed into marble. Listen again, इसमें आपने बताना है temperature and heat is more in the interior of the earth's surface. So due to this heat and pressure, limestone changed into marble. आप ये भी कह सकते हो, only you can write like this, limestone changed into marble because of heat and pressure. Because of heat and pressure, you can write like this also, student. Is it clear? आप ऐसे भी बता सकते हो। No, I'm going to repeat again. Now listen carefully. 3 layers of earth. Now you know it very well. First is crust, where we live. And second, below the crust there is mantle. ठीक है? Crust is the thinnest most layer of the earth. Below the crust is mantle.
ठीक, 2900 किलोमीटर डेप्थ। नेक्स्ट, बिलो द मेंटल there is the innermost layer of the earth is core। ठीक है, someone's hand is up। देवांग wait, देवांग का हैंड अप है। यस देवांग, व्हाट्स द प्रॉब्लम बच्चे? देवांग आई हैव अनम्यूटेड यू। यस मैम एक बार थर्ड वाला रिपीट कर दो। okay, limestone is changed into marble। you can write like this na, कि due to lot of heat and pressure। बस this is the main answer कि limestone क्यों marble में change हो जाता है, only because of heat and pressure। is it clear? Yes ma'am। Only because of heat and pressure limestone changed into marble। आप ये बता सकते हो ना, there is lot of heat and pressure in the interior of the earth, and because of this heat and pressure limestone changed into marble। Now is it clear? Next is 3 layers हम कर रहे थे, crust, mantle, core। crust मैंने इसके 2 parts बताए थे, continental crust and ocean floor। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने बोला था आपको मेड अप ऑफ सियाल, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, एंड ओशन फ्लोर सिमा, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो इस वे से आपको लर्न करना है। जो सियाल है ना, दैट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, एंड सिमा इज द लोअर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। हम कहाँ रहते हैं? क्रस्ट पे। हम मेंटल पे नहीं रहते, हम कोर पे भी नहीं जा सकते, हम खुद मेल्ट हो जाएंगे अगर जाएंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट इज आपको अगर आ जाए कि इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स, यू नो इट वेरी वेल। ये देखो मुझे बच्चे नहीं दिख रहे, वेरी बैड। बच्चे दिखनी चाहिए ना मुझे। स्टूडेंट ऑन योर कैमरा, ऑन योर वीडियो, ऑन योर वीडियो। Is there is any problem? So many students. Oh, Karthik Chadda, what's the problem? I have unmuted you, Karthik Chadda. What's the problem? Yes मैम। मैम आपका माइक ना थोड़ा सा वो अपनी पोजीशन से हिल गया था मैम, अब ठीक हो गया। आपकी पहले आवाज बंद हो गई थी। Okay, 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 no problem. Okay, okay, keep your hands down। सारे बच्चे hand down कर ले। Next is intrusive and extrusive rocks। Now listen carefully। आपने पहले तो ये बताना है कि igneous rocks के दोनों igneous rocks से ही का पार्ट है, intrusive and extrusive। intrusive rocks कैसे बनती है? When lava cools down inside the earth surface, लावा जब inside the earth surface ठंडा होता है and does not come out, it takes lots of time to cool down, क्योंकि वो inside ठंडा हो रहा है and takes lots of time to cool down। So due to this large grains are formed, and example of these rocks is granite। आपके घर में किचन की जो शेल्फ है that is of granite। कई बार फर्श भी ग्रेनाइट के डलवाते हैं लोग, तो granite is an example of intrusive igneous rocks। Next is extrusive। When lava comes out, molten magma comes out to the earth's crust and cools down। जब वो क्रस्ट से बाहर आता है और ठंडा होता है, and from this extrusive igneous rocks are formed, and this take here lava takes less time to cool down क्योंकि वो बाहर आके ठंडा हो रहा है। and from this आप पहले तो बताओगे कि extrusive igneous rocks है, and example is basalt, and basalt rocks are found in Deccan Plateau। कहाँ पे पाई जाती हैं? Deccan Plateau में। ठीक है, next is rock cycle। transformation of rocks from one form to another in cyclic manner is called rock cycle। इमेजिन, ये क्वेश्चन मैम ने आपको 5 मार्क्स का दे दिया, तो आपने वहां पे बिल्कुल नहीं डरना, आपने अपने आप रॉक साइकिल कर देना, बिकॉज आपने चैप्टर पढ़ा तो रॉक साइकिल आपको आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल द डेफिनेशन। अगर 2 मार्क्स का आता है तो यू हैव टू टेल द डेफिनेशन ओनली। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। ये तो हो गया 2 मार्क्स। बाई चांस मैम आपको 5 नंबर का देते हैं, तो आपने कहना फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज मोल्टन मैग्मा। अपने इजी वे से लिखो, नो नीड टू क्रैम। मोल्टन मैग्मा जब ठंडा होता है, व्हेन कूल्स डाउन, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म्ड। फिर आपने बताना है, इग्नियस तो आपको पता है ना,
प्राइमरी रॉक्स है ना. मोल्टन मैग्मा व्हेन कूल्स डाउन igneous rocks are formed. फिर आपने कहना है when igneous rocks broken down into small pieces, from these sedimentary rocks are formed. फिर आपने कहना है igneous and sedimentary rocks due to heat and pressure changes into metamorphic rocks, and metamorphic rocks which are still under great heat and pressure again start melting, and from this again igneous rocks are formed. तो वापस igneous पे ही लाके खत्म करना है rock cycle cyclic manner. Next is uses of rocks. कितने इजी आप अपने आप लिख सकते हो. You can write it in your own way. पहले तो आप घर के ही बताओ, घर में कहाँ यूज हुआ. आप बताओ कि घर बनाते वक्त है ना हम यूज करते हैं, मार्बल यूज होता है घरों में, ग्रेनाइट यूज होता है. बिल्डिंग्स के लिए आप बताओ है ना, मॉन्यूमेंट्स में एग्जांपल बताओ. रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन. फिर आप ताजमहल की एग्जांपल बता सकते हो, मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. तो दीज आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. फिर आप बता सकते हो स्टोन्स ऑफ रॉक्स आर यूज्ड इन वेरियस गेम्स. आप कोई भी गेम्स बता सकते हो, ठीक है. स्टापू, पिट्ठू एंड देन गिट्टी जो गर्ल्स खेलती हैं. एंड यू कैन आल्सो राइट के रोड्स, ब्रिजेस, है ना. तो ये भी इम्बैंकमेंट्स, इनको बनाने के लिए भी रॉक्स को यूज किया जाता है. फिर आप ये भी बता सकते हो कि रॉक्स प्रोवाइड अस वेरियस मिनरल्स, ठीक है. तो दीज आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. नेक्स्ट इज व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स. पहले तो आप मीनिंग बताओगे. द वर्ड मेटामॉर्फिक इज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड मेटामोर्फोस मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म. फिर आपने कहना है igneous and sedimentary rocks due to great heat and pressure changes into metamorphic rock. और यहाँ पे आप एग्जांपल भी बता सकते हो, ठीक है. लाइमस्टोन इनटू मार्बल, क्ले इनटू स्लेट. फिर आप ये भी बता सकते हो कि मेटामॉर्फिक रॉक विच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जो कि अभी खुद हीट एंड प्रेशर के अंडर होती हैं, स्टार्ट मेल्टिंग एंड मोल्टन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है. So this is about next. What are minerals? Minerals are naturally occurring substances which have certain physical properties and definite chemical composition. अगर पेपर में uses of minerals are पेपर ना, पेपर में तो आ ही सकता है ना. इट्स अ पार्ट ऑफ द बुक. आप बुक में तो है ही है ना ये टॉपिक. तो आपको यूजेस ऑफ मिनरल्स कोई क्रैम नहीं करने. अपने आप सोचो मिनरल्स किस किस में यूज होते हैं. फ्यूल में एग्जांपल बताओ. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. इंडस्ट्रीज यूज करती हैं मिनरल्स. मिनरल्स आर यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज. आयरन आप बताओ, उनके कोई भी बताओ, एल्यूमिनियम, कुछ भी. फिर आप बताओ कि आप गर्ल्स जो है या आपके मम्मा ज्वेलरी वगैरह पहनते हैं, बताओ. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी आइटम्स, ठीक है. जो मर्जी ऐसे बताते जाओ आप मिनरल्स के यूजेस. फिर आप बताओ मिनरल्स आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स. मिनरल्स आर यूज्ड इन मेडिसिन आल्सो, ठीक है. So these are the uses of minerals. Though this question is not given at the back, but it can come in paper. आ सकते हैं ना ये क्वेश्चन. तो आपको जब पढ़ना है तो आपको सारी थोरो रीडिंग करनी है बुक की. आपको ये नहीं है कि आपको सेडिमेंट्री का मीनिंग आना चाहिए. दिस वर्ड इज टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम. मीनिंग क्या मीनिंग है सेडिमेंट्स. इसका मीनिंग क्या है सेडिमेंट्री का. टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, ठीक है. इग्नियस अगर आ जाए तो टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर, ठीक है. सेडिमेंटम सेटल डाउन, इग्निस फायर, एंड मेटामोर्फोस चेंज ऑफ फॉर्म, पूरी फॉर्म चेंज हो जाती है. तो फॉसिल्स क्या होते हैं. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वॉल्यूम करते हैं. क्रस्ट का बताओ 1% एंड मेंटल 84%. कोर सिर्फ 15%. रेडियस कितना अर्थ का 6371 किलोमीटर. तो आप अपने आप सोचो हम इतना डीप जा सकते हैं 6371 किलोमीटर डीप. हम तो खुद मेल्ट हो जाएंगे, ठीक है ना. तो दीज आर द टॉपिक्स विच आर डीपेस्ट माइन कहाँ पे है इन द वर्ल्ड. दैट इज इन अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में है. डीपेस्ट माइन इज इन साउथ अफ्रीका. तो
अगर आपको पूछा जाए जैसे कि कोर 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 अगर आपको पूछा जाए तो दैट इज मेड अप ऑफ, आपने बताना है नाइफ, नाइफ की फुल फॉर्म Ni फॉर निकल, Fe फॉर फेरस, फेरस मीन आयरन। ठीक है, जैसे मैंने सियाल बोला, सियाल सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, सिम्मा सिलिका प्लस मैग्नीशियम। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ नाइफ, निकल प्लस फेरस, फेरस किसको कहा गया है, आयरन को, तो लर्न इट। ओके, तो नेक्स्ट इज कितने तरह की रॉक्स हैं, 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स, कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इज इग्नियस जिसको हम प्राइमरी रॉक कहते हैं, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो प्राइमरी आपको पता ही है कौन सी रॉक्स हैं, इग्नियस। अब आपको ये भी पता है इग्नियस की 2 टाइप्स ऑफ रॉक्स इग्नियस से जो बनती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इनसाइड लावा ठंडा होता है, एक्सट्रूसिव आउटसाइड ठंडा होता है, बस ये बात याद रखना, इतना भी समझ आएगी। जो इनसाइड ठंडा हुआ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, जो आउटसाइड ठंडा हुआ इट टेक्स लेस टाइम। तो लेस टाइम में जो हुआ उसमें फाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, बसाल्ट है, डेक्कन प्लेट्यू की रॉक्स। ठीक है, इनसाइड लावा ठंडा हुआ इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड फिर हम कहेंगे लार्ज ग्रेन्स आर फॉर्म, एंड एग्जांपल इज ग्रेनाइट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रॉक साइकिल, आ जाए तो यू कैन राइट रॉक साइकिल भी आप कर सकते हो ना। नेक्स्ट, अगर आपको पूछा जाए, yes, what do you mean, what is rock? A natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. A natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called rock. कितने तरह की है, 3 तरह की। अब रॉक साइकिल यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, प्राइमरी रॉक्स कौन सी हैं, इग्नियस रॉक, सबके मीनिंग आते हैं, यूजेस ऑफ रॉक्स आते हैं आपको, रॉक्स हमें मिनरल्स देती हैं, आपको मिनरल्स भी पता है, and you know the uses of minerals also. तो इट मीन्स अब इस लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यू ऑल्सो नो इट, यू कैन राइट द गिव रीजंस कि व्हाई वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। आप लिख सकते हो, ऑक्सीजन नहीं है ना वहां पे, एवरीथिंग इज इन मोल्टन स्टेट, क्योंकि इतना डीप हम कैसे जाएंगे, 6371 किलोमीटर नहीं जा सकते, एवरीथिंग इज इन मोल्टन फॉर्म, टेम्परेचर इज सो हाई, लॉट ऑफ हीट एंड प्रेशर, तो कोई भी नहीं जा सकता वहां पे, ऑक्सीजन ही नहीं है। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स, यस, वही उसी से बनती हैं। कौन सी रॉक्स टूट जाती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स का मीनिंग ही क्या है, सेडिमेंटम का मीनिंग क्या है, सेटल डाउन। अब कैसे सेटल डाउन होते हैं, कौन लेके जाता है उन्हें, विंड एंड वाटर टू अदर प्लेस, देयर दे सेटल डाउन, लेयर्स बनती हैं, उन लेयर्स से फिर कौन सी रॉक्स बनती हैं, सेडिमेंट्री। एंड सेडिमेंट्री रॉक्स में और क्या पाए जाते हैं, फॉसिल्स, फॉसिल्स दैट रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर 1 मार्क में पूछा जाए फॉसिल्स आर फाउंड इन विच रॉक्स, तो यू नो इट वेरी वेल, सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री एंड इग्नियस से कौन सी रॉक्स बन जाती हैं, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक अगेन ड्यू टू हीट एंड प्रेशर मेल्ट हो जाती हैं, तो कौन सी रॉक्स बन जाती हैं, अगेन इग्नियस। सो दिस इज अबाउट रॉक साइकिल। यू नो द यूजेस ऑफ मिनरल्स आल्सो, है ना, मिनरल्स के भी आपको यूजेस पता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल को ले लो, सेकेंड इंडस्ट्रीज ले लो, मिनरल्स के लिए थर्ड आप मेडिसिन ले लो, एंड फोर्थ यू कैन राइट अबाउट फर्टिलाइजर्स, ज्वेलरी ले लो। ठीक है, तो ये 5 आइटम्स को लेके आप इसको एक्सप्लेन कर दो। यूजेस ऑफ मिनरल्स, यूजेस ऑफ रॉक्स में आप क्या लोगे, हाउसेस ले लो, घर अपने। ठीक है, फिर आप बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स ले लो, मॉन्यूमेंट्स रेड फोर्ट एंड ताजमहल ले लो, दोनों का बताओ, एक रेड सैंडस्टोन से बना है और एक व्हाइट मार्बल से बना है। ठीक है, फिर आप बताओ रोड्स, एम्बैंकमेंट्स, ये सब बनाने के लिए, ब्रिजेस, ये सब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, स्टोन्स फ्रॉम द रॉक्स ही चाहिए। नेक्स्ट, फिर हम बताएंगे रॉक्स हमें और क्या प्रोवाइड करती हैं, वेरियस मिनरल्स। तो इस वे से अगर आप करोगे ना तो आपको ये क्रैम नहीं करने पड़ेंगे, यू कैन राइट दीज आंसर्स वेरी इजीली इन योर ओन वे। तो ये लेसन मुझे नहीं लगता अब किसी बच्चे को इस लेसन में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट इज, अब आपका आ गया एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। अब एक बार इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, विच आर गिवन एट द बैक। rock which is made up of molten magma, you know it very well, molten magma से जो बनती हैं, which are the rocks, igneous rocks. Innermost layer of the earth is, innermost मैंने पूछी है तो कौन सी होएगी,
कोर, अगर मैं आउटर मोस्ट पूछूं तो क्रस्ट, ठीक है। नेक्स्ट गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल, किसकी एग्जांपल है, अब भी किया हमने, मिनरल्स। नेक्स्ट इज रॉक्स which contain fossils, अभी बताया मैंने, rocks which contains fossils, sedimentary rocks, fossils किस में पाए जाते हैं, sedimentary rocks. Now which is the top layer of the crust, sial, lower layer sima, sial means silica plus aluminium, sima silica plus magnesium, core is made up of knife, nickel plus ferrous, ferrous means iron, nickel plus iron, nickel plus iron, core is made up of knife, nickel plus iron, Ni for nickel, Fe for ferrous, ferrous means iron. Is it clear? Three types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks, metamorphic rocks. The word igneous is taken from Latin word ignis meaning fire. And next, sedimentary. The word sedimentary is taken from Latin word sedimentum meaning settle down. The word metamorphic is taken from Greek word metamorphos meaning change of form. तो ये सबके साथ एक एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है। रॉक साइकिल क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड रॉक साइकिल। रॉक साइकिल सबको पता है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा व्हेन कूल्स डाउन तो कौन सी रॉक्स बन जाती हैं, इग्नियस, igneous rocks when broken down into pieces तो sediments बनते हैं, sediments when get collected layers are formed तो कौन सी rocks बन जाती हैं, sedimentary rocks. Now igneous and sedimentary rocks changes into metamorphic rocks due to heat and pressure. फिर आपने बताना है कि metamorphic rocks which are still under great heat and pressure वो फिर मेल्ट हो जाती हैं, start melting, and from this फिर molten magma and molten magma से again igneous rocks. So I think no problem. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही, वेट एक मिनट। अब आ रही है। अब आ रही है, अब नहीं आ रही है, ऐसे कैसे हो गया बेटे, एक मिनट। जसवीन, व्हाट्स द प्रॉब्लम जसवीन? मैम पहले नहीं आ रही थी, फिर दोबारा से ठीक हो गई थी। ये बता। मैम फिर चली गई। मैम फिर चली गई। यस मैम। मैम फिर से नहीं आ रही। यस मैम, मैम अब आ नहीं रही आपकी आवाज। फिर नहीं आ रही? नहीं आ रही। मैम आ गई, मैम आ गई। ओके मुझे समझ लग गई ऐसी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मुझे समझ लग गई, नो प्रॉब्लम। ये ना मुझे बाद में देखती हूँ ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, एक मिनट। अगर तो यही प्रॉब्लम के लिए हैंड्स अप है, देन कीप योर हैंड्स डाउन। If you are having any problem regarding any question, any topic, then you can raise your hand. Yes. अब मैं देख रही हूँ किसका हैंड अप है regarding question. जैस्मीत. Yes, only Jasmeet. Jasmeet, be quick, बच्चे. What's the problem? No problem. Jasmeet, you keep your hand down. What's the matter? हो गया था। Okay. If it means no one is having problem regarding the chapter. Very good. बहुत अच्छे बच्चे हैं, very good. Now time of the class is over. Revise these both the chapters of geography, and tomorrow I will revise civics because your test ये जो week है आपका I think your test will be on Saturday and that is from chapter on equality. तो कल मैं आपको on equality chapter की रिवीजन कराऊंगी ताकि आपको लर्न ना करना पड़े, आपको आता हो। तो thank you students for listening. God bless you all.